So we will note down. So in this retail lecture, welcome to Sophist English Academy. आप क्वेश्चन देख सकते हो. You will hear a lecture. तो कोई मेल या फीमेल वॉइस में कोई आपको कोई लेक्चर बताएगा. After listening to the lecture in 10 seconds, please speak into the microphone and retell. Retell मतलब दोबारा बताओ कि आपने क्या सुना. What you have just heard from the lecture in your own words. You will have 40 seconds to give your response. 40 सेकेंड है आपके पास अपना रिस्पॉन्स देने के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अब इसके अंदर आपने करना क्या है, जो आप जब ये ऑडियो प्ले होगा तो आप एक ब्लू कलर का बार देखोगे. उस बार को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. लेट्स से इक्वल 3 पार्ट्स में. तो एक स्टार्ट पॉइंट, एक स्टार्ट हो गया, एक मिडल हो गया और एक एंड हो गया. तो आपने नोट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट में कौन सा नाउन था या नाउन थे और कौन सा वर्ब था उस नाउन के साथ. जैसे इनिशियली कोई बात करेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में या क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन के बारे में, और उसके बारे में बताएगा कि सिचुएशन जो है वो बैड है और वर्स होती जा रही है. सो बैड और वर्स जो है ये हमें बताते हैं कि सिचुएशन, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो इसको आपने क्विकली नोट कर लेना है. ऐसे ही मिडिल पार्ट में अलग से आपने नोट करना है कि किस नाउन की बात हो रही थी. हो सकता है कि वो डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हो, कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ रही है. तो बढ़ रही है तो एक्शन वर्ड क्या हो गया, इंक्रीजिंग. ऐसी चीज़ें जब आप नाउन के साथ वर्ब के कॉम्बिनेशन, जो नाउन फ्रेज को आप नोट कर लेते हो, तो वो आपको एक आइडिया देता है लाइव अटेम्प्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को. ऐसे ही आपने एंड के पार्ट को भी किस नाउन की बात हो रही है. हो सकता है कि किसी कंट्री के प्रॉपर नाउन की बात हो रही हो, जैसे इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन इंग्लैंड, इन इंडिया, इन चाइना, द अमेजॉन रिवर फॉरेस्ट, या क्लिनिकल ट्रायल्स इन प्रिंस एल्फ्रेड हॉस्पिटल. कोई भी नाम ले सकते हैं, उसको तो मिस करना ही नहीं है. So it is very, very important. Okay, so let's see how it goes. We will try a live session with you. So let's see how to click out. Now we click to play audio, and I'm gonna make some notes. आप भी करिए और let's see how it goes. In the midst of the recession, economists warned us not about deflation, but about runaway inflation, thanks to aggressive government stimulus spending, record low interest rates, and more than $1 trillion in new money injected into the economy by the Fed. In a normal economy, all that liquidity would ratchet up demand for assets, which in turn would drive up prices. Voila, inflation. As you've no doubt heard dozens of times, however, this isn't a normal economy. Many consumers are out of work with falling income or no income. Debt loads are so high that many consumers couldn't borrow if they wanted to, so they're using unspent cash to pay down debt. After a few hopeful months earlier this year, consumer spending is slipping. That worries CEOs, who are reluctant to hire when spending is down, while shoppers worried about scarce jobs respond by shutting their wallets. Low inflation has been a blessing for consumers. Economists call this good deflation because it makes people and companies more productive and helps improve living standards. Bad deflation happens when the price of everything falls, and that can harm everybody. Economist Gary Shilling cites 3 factors needed for bad deflation: a financial crisis, a deep recession, and a spike in unemployment. We've had all of those. When the economic pain gets intense enough, demand for all products falls far below supply, simply because people don't have enough money to buy all the stuff companies are geared up to produce. That has clearly happened in the market for a variety of products. Okay, now we have 10 seconds. So 6, 5, 3 parts में इसको बोलेंगे हम. So in this lecture, the speaker spoke about the financial terms like recession, government spending, and how a person gets affected by the economical decisions. The government spending and the new money is injected, which causes a lot of burden on the financial thing. In the normal economy, the demand is in place and the prices are increased, but this is not a normal economy. In the middle section, the speaker spoke about that the leaders are worried, the shoppers are not spending money. And in the last part, the 3 factors were highlighted: the financial crisis, deep recession, and unemployment in a very effective manner. Okay, so let's see.
what all we have covered and what all we missed. So you can check my channel for all these videos. There are no silly shortcuts or tips or tricks. It's very simple. You have to be able to understand the content. आपको सुन के बात समझ आनी चाहिए, तभी आप उसको अपनी भाषा में बता सकते हो. ये जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये बहुत रिस्की हैं. आपके पैसा, आपका टाइम सब इन्वेस्ट होना है. सो प्लीज़ स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग. ओके, सो ये आपके सामने है 78 on 90. आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन्ड आंसर क्या है और मेरा आंसर क्या था. आप नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लीज़ दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू हेयर गिव माई बेस्ट. आई एम हेयर टू टेल यू कि अगर आप थोड़ी सी बात भी पकड़ लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड करें. पार्ट 1 के अंदर किस नाउन के बारे में क्या बात हो रही है, जैसे हम इसकी बात करें. इन दिस लेक्चर द स्पीकर स्पोक अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स. इसमें नाउन क्या था? रिसेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पर्सन के ऊपर कैसे अफेक्ट होता है. ये हमने वर्ब लगा के नाउन्स को यूज़ कर लिया. बाय द इकोनॉमिकल डिसीजंस. इकोनॉमी के जो डिसीजंस होते हैं. द गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आई थी, मैंने एग्जैक्ट उठाया. न्यू मनी प्रिंट की बात हुई थी, इंजेक्टेड की बात हुई थी. इसके साथ मैंने बोल दिया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लॉट ऑफ बर्डन ऑन दी फाइनेंशियल. ये कुछ गलत सुन गया. ऑन दी फाइनेंशियल हेल्थ की बात हुई थी यहाँ पे. फिर उन्होंने बात की नॉर्मल इकोनॉमी एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल इकोनॉमी. दो चीज़ें मुझे सुनी. तो नॉर्मल इकोनॉमी, द डिमांड सुना मेरे को, इज़ इन प्लेस, मतलब डिमांड होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं. बट फिर उसने कहा कि ये नॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल इकोनॉमी. देन इन द मिडिल सेक्शन द स्पीकर स्पोक अबाउट, जो CEOs की बात हुई थी, मैंने उसको लीडर्स बोला, दैट शॉपर्स आर नॉट स्पेंडिंग मनी. और फिर लास्ट पार्ट में 3 फैक्टर्स वर हाईलाइटेड. मुझे कुछ याद नहीं रहा, मेरे नोट्स में क्लियर नहीं था. मैंने सिर्फ ये कहा कि 3 फैक्टर्स हाईलाइट हुए. फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन मैं बोल नहीं पाया, और अनएम्प्लॉयमेंट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. लेकिन मैनर बोलने से पहले ही ऑडियो का टाइम पूरा हो गया. सो गाइज, दिस इज़ द रियल वे. प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दोज फेक यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. क्लिक बेट के ऊपर नहीं जाना है आपने. इंग्लिश समझनी पड़ेगी. हाँ, 40% समझ आए, 50% समझ आए, उससे भी काम कैसे चलना है, ये मैंने आपको आज करके दिखाया. सो ऑल द बेस्ट. फॉलो द चैनल. मोर वीडियोज आर गोइंग टू फॉलो.